Hi everyone, so welcome to my channel Aslam Coding. So today we'll see how to study front-end development in 2026. We'll start from HTML, CSS and JavaScript, and after that we'll also see that why we need the React.js. Even though HTML, CSS and JavaScript, with the help of that, we can create good websites. Still, at present, React.js is heavily used in the industries for creating the front-end websites. So let's get started, okay? तो सोचो तुम अगर कोई एक वेबसाइट ओपन करते हो जो भी लाइक इंस्टाग्राम, अमेजॉन, यूट्यूब या फिर तो उसमें जो भी तुम देखते हो इंटरैक्टिव सर्च बटन्स, उसके बाद कलर्स, इमेजेस, एनिमेशंस, लेआउट, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? ठीक है, ये बैकएंड तो बनाते नहीं, ये कौन बनाते हैं? फ्रंट एंड डेवलपर्स। ठीक है, जितनी सारे एनिमेशंस आती हैं, ठीक है, प्रॉपर यूआई उसका होता है, ठीक है, यूजर इंटरफेस, ठीक है, तो जो भी सर्च बॉक्स, बटन्स, एवरीथिंग जो लेआउट्स तुम देख रहे हो, कलर जो होता है उसका, ठीक है, प्रॉपर कलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, और इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि मतलब अगर तुम भी स्टार्ट करना चाह रहे हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट। ठीक है, व्हाट इज फ्रंट एंड? देन वी विल सी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इट्स हिस्ट्री, लाइक फर्स्ट हाउ इट स्टार्टेड, लाइक HTML, देन CSS के, देन जावास्क्रिप्ट। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाई रिएक्ट। ओके, रिएक्ट का क्यों क्या यूज है, ठीक है, एंड कैसे हमें सीखना है, एंड देन हाउ मच वी कैन अर्न फ्रॉम फ्रंट एंड डेवलपमेंट. Like you can see that in today's world, everyone, like within 5 minutes you can generate the front end UI very simply. Okay, so how you are going to get differentiated from those people who are generating using the vibe coded, and how you are going to create your website. So all these things we'll see. Okay, so vibe coding you can make it. Suppose you have made a website using vibe coding. Okay, and if the user counts is increasing on your websites, okay, so like if thousands users are hitting the website, then 1 lakh. So if 1 lakh users are hitting on your website, so your UI might start lagging. Okay, so there you have to improve, you have to cache it. Okay, you have to scale it. So all these things you need to learn. You have to improve the performance of your front end. Okay, so that's also you have to learn, not only just vibe coding and generating a website template in 5 minutes and that's the front end development, and people are saying ki now front end job is gone. That's not the truth. Even today people are earning good amount of money, like companies like Amazon, Coursera, and there are such many more companies. They are hiring for good front end engineers. Okay, so don't get afraid that front end jobs are going to go because of AI. Of course you will use AI in your day-to-day work, but it's not going to replace you. You have to like use it wisely. Okay, so first one is that internet, how like started with the web. So in 1990s when internet started now, so at that time the websites were very static. Okay, just basic text and simple hyperlinks were there, like one page to another, that only it was there. Okay, so simple text भी थे वहाँ पे, और एक simple एक language थी. कौन सी language थी? HTML, that stands for hypertext markup language. मतलब कि बेसिक टेक्स्ट कुछ रहेगा उसमें, और एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कुछ हाइपर लिंक्स उसमें बना दिए गए थे जिसके थ्रू तुम जा सकते हो. ठीक है, अब ये HTML का काम क्या होता था? तुम्हारा ये वेबसाइट का ये स्ट्रक्चर बनाता था. ठीक ना, जैसे कि एक वेब पेज में नया बार होगा, टाइटल बार, ठीक है, साइड में जो बार्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आर्टिकल सेक्शंस, फिर फुटर्स, तो ये सारी जो चीज़ें थी, मतलब तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी वेबसाइट का, वेब पेज का, तो वो हम लोग किसके थ्रू बनाते हैं? HTML के थ्रू. उसमें हेडिंग्स आ गया तुम्हारा, उसके लिए H1 टैग, पैराग्राफ्स हो गया, इमेजेस कुछ हो जाएंगे बेसिक, देन लिंक्स हो जाएंगे एक पेज से दूसरे के लिए जाने के लिए. बट प्रॉब्लम ये था कि ये जो वेबसाइट थी काफ़ी बोरिंग लगती थी, क्योंकि उतना इंटरेक्टिव नहीं था, उतना अच्छा स्टाइलिश उसका नहीं था. ठीक है, बेसिक HTML था, 1990s की बात है. ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट होते हैं. देन उसके बाद क्या आया? CSS. ओके, सो CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. इसका काम क्या होता है कि देखो, HTML से तुम क्या करोगे? स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे किसी भी वेबसाइट का. अब CSS के थ्रू तुम क्या कर सकते हो कि उस वेबसाइट को तुम डिजाइन कर सकते हो, उसको स्टाइल कर सकते हो. जैसे किसी वेबसाइट की कलर्स क्या होंगे, लेआउट, स्पेसिंग, एनिमेशंस, और अब उसके बाद तुम्हारी जो वेबसाइट काफ़ी ब्यूटीफुल लगने लगेगी जब तुम CSS को यूज़ कर लोगे. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो वेबसाइट तुम्हारी वो इंटरैक्टिव नहीं थी. लेकिन किस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या पॉपअप होना चाहिए, ठीक है, जो फंक्शनलिटी थी मतलब प्रॉपर, वो अभी भी नहीं आती. HTML से तुमने स्ट्रक्चर बना दिया, CSS से तुमने क्या किया कि अपने वेबसाइट को स्टाइलिश कर दिया, डिजाइन कर दिया, प्रॉपर्ली एनिमेशन एंड ऑल डाल दिया. लेकिन अभी भी तुम्हारी वेबसाइट एनिमेटेड, वो इंटरैक्टिव नहीं थी. ठीक है, किस बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, कंट्रोल उस पर नहीं था प्रॉपर. ठीक है, तो कंट्रोल के लिए क्या आता है? फाइनली 1995 में जावास्क्रिप्ट आता है. ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का मेन काम क्या था कि वेबसाइट को हमारा इंटरैक्टिव बनाना. ठीक है, इंटरैक्टिव मतलब कि बटन क्लिक करें तो क्या होगा, फॉर्म हम लोग सबमिट करते हैं तो फॉर्म पे वैलिडेशन लगाना, क्योंकि एम्प्टी फॉर्म सबमिट ना हो जाए, एनिमेशंस को बनाना, फिर डायनेमिक कंटेंट. ठीक है, डायनेमिकली मतलब कंटेंट चेंजेस होना वेबसाइट पे. तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी जावास्क्रिप्ट ने लाया. ठीक है, तो अब इसके बाद क्या तुम्हारी वेबसाइट एकदम अलाइव एकदम लगने लगी. ठीक है, प्रॉपर लगने लगी, क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर बना दिया, तुमने डिजाइन भी क्रिएट कर दिया, देन अब इंटरैक्टिव भी तुम्हारी वेबसाइट हो गई. ठीक है, अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या थी तुम्हारी ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट में. देखो तुमने HTML से जावास्क्रिप्ट यूज करके वेबसाइट तो बना दिया, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आने लगी. जावास्क्रिप्ट कोड एकदम मेसी लगने लगे. कब? जब थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स आने लगे, जब तुम्हें बार बार डोमेन इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेरी सेलेक्टर या फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट सेलेक्टेड बाई ID बाई टैग नेम ऐसे बार बार लिखने की तुम्हारे क्या स्टेट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अराइज होने लगे. एक ही कोड में तुम्हारे कोड लाइन्स बढ़ते गए, प्रॉपर उसमें मॉड्यूलर स्ट्रक्चर नहीं था. ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी डेवलपर्स लोगों को. ठीक है, कोड मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होने लगा. ठीक है, सो इसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए 2013 के टाइम में एक लाइब्रेरी बनी. ओके, लाइब्रेरी. ठीक है, React.js नाम की एक लाइब्रेरी बनी. इसको कौन बनाया था? फेसबुक, जो कि अभी मेटा कंपनी के नाम से जानते. ठीक है, सो फेसबुक डिजाइन दिस React.js लाइब्रेरी फॉर फ्रंट एंड.
जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी अर्लियर जावास्क्रिप्ट बेसिक एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट में, तो उसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए React.js एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी फेसबुक ने क्रिएट करा 2013 के टाइम। ओके, इसका गोल एकदम सिंपल था, क्या करना था कि यूआई को कंपोनेंट बेस्ड बनाना था, ठीक है। जो तुम यूजर इंटरफेस बना रहे हो, जैसे तुम देखो पहले अगर HTML से बनाओगे तो तुम्हारा नैव बार, फिर उसके बाद तुम्हारा हीरो सेक्शन, फिर उसके बाद कुछ साइड बार रहेगा तुम्हारा, फिर फुटर, और ऐसे करके कुछ बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए रहेंगे, ठीक है। अब क्या हो, जैसे तुम्हारा React.js आ गया तो तुम क्या कर दो ना, नैव बार के लिए एक अलग से कंपोनेंट बना दो। अब ये कंपोनेंट की खास बात है, तुम इसको दोबारा रीयूज कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में, मतलब डिफरेंट पेजेस में, डिफरेंट जगह तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब नैव बार तुम्हारा हो गया, साइड बार, इन सबका तुम डिफरेंट कंपोनेंट बना लोगे, ठीक है। यूआई कंपोनेंट बेस्ड हम लोग बनाएंगे फ्रंट एंड में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वन बिग फाइल रेक में हम क्या करेंगे, नैव बार एक अलग से कंपोनेंट, साइड बार कंपोनेंट, कार्ड्स कंपोनेंट, बटन कंपोनेंट्स, फुटर कंपोनेंट्स, सर्च बार कंपोनेंट्स, सो ऑल दीज थिंग्स हमने क्या कर दिया कि मॉड्यूलर अप्रोच हमने यूज कर दिया ताकि हमारा कोड रीयूजेबल हो जाए, ठीक है। अब रिएक्ट एक पावरफुल कॉन्सेप्ट यूज करता है, क्या यूज करता है, वर्चुअल डोम का। इससे वेबसाइट हमारी क्या होती है, फास्ट और एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। वर्चुअल डोम तो पुरानी वेबसाइट में क्या था कि अगर तुम एक पेज से दूसरे पेज पर क्लिक करोगे तो तुम्हारी पूरी वेबसाइट रीलोड होती थी। अब इस रीलोड होने के चक्कर में, जैसे मान लो काफी हैवी इमेजेस थे या फिर वीडियोस होंगे, तुम्हारी वेबसाइट काफी स्लो हो जाएगी। सोचो तुमने एक स्मॉल चेंजेस किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी पूरी वेबसाइट रीलोड हो रही है, फिर से जो चीज़ों को रीलोड नहीं होना चाहिए वो सब भी रीलोड है। जैसे मैंने कहा कि टाइम बढ़ जाएगा, वेबसाइट तुम्हारी स्लो हो जाएगी, परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाएगा और यूजर लोग काफ़ी बेकार लगे, एकदम काफ़ी लैग करी वेबसाइट, तो बाकी लोग उसको प्रेफर नहीं करना चाहेंगे। अब React.js में क्या होगा, वर्चुअल डोम को लाया गया, ठीक है। वर्चुअल डोम में क्या होता है कि वो मैप करता रहता है कि कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ, ठीक है, कौन से कंपोनेंट में कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है, कौन सा पार्ट, सिर्फ उसी पार्ट को ही वो क्या करता है, ट्रेस करके सिर्फ उसी को चेंज करता है। इससे तुम्हारी क्या होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बन पाती है और तुम्हारा बिना पेज रीलोड हुए जिस पार्ट में चेंजेस हुआ सिर्फ उसी को वो चेंज हुए, उसी में वो मतलब चेंजेस को अपडेट हो जाते हैं, ठीक है, वर्चुअल डोम के थ्रू, ठीक है। तो आजकल का फ्रंट एंड स्टैक क्या है कि देखो, अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रही है, वांटेड टू बिकम अ गुड फ्रंट एंड डेवलपर्स टू whom even AI cannot replace, so first of all you have to learn HTML, CSS and JavaScript, okay। Why HTML, CSS, JavaScript, even though React.js is very powerful because these are the basic building blocks। एक बार जब तुम सीखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम फेस करोगे, तुम्हें प्रॉब्लम रियलाइज होगी, तब तुम React.js जब सीखोगे तो उसको तुम इंप्रूव करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट यू लर्न HTML, देन CSS, देन JavaScript और उसके बाद React.js तुम लाइब्रेरी को सीखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे एक गुड फ्रंट एंड डेवलपर बन पाओगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हें सिर्फ इतने से काम नहीं होना, फिर इसके बाद कुछ तुम्हें टूल्स भी सीखने होंगे, लाइक गिट एंड गिटहब तुम्हें सीखना होगा, ठीक है। तुम कैसे अपने कोड को, मतलब जो भी तुम कोड करोगे अपने मशीन पे, उसको तुम इंटरनेट पे गिट के थ्रू तुम गिटहब पे कैसे पुश कर सकते हो, वहाँ से अपने कोड पे तुम कोलैबोरेट कर सकते हो, दूसरे लोग उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर तुम्हें बेसिक APIs का नॉलेज लेना पड़ेगा। फिर अब CSS जो तुम नॉर्मल यूज करते हो वो थोड़ा मतलब पुराना हो गया, अब ये क्या आ गया, टेलविन CSS, उसके थ्रू तुम वन लाइनर तुम React.js के अंदर ही मतलब तुम CSS लिख सकते हो, तुम्हें सेपरेट फाइल बनाने का जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू कैन यूज टेलविन CSS एंड अगर तुम अच्छे से सीख लेते हो React.js पे, तुमने अच्छे से कमांड अगर तुमने हासिल कर लिया, ठीक है, तो देन यू कैन मूव फॉर Next.js एंड दिस इज द ट्रेंडिंग और दिस इज द लाइक इट्स बेसिकली अ फ्रेमवर्क फॉर फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड, ओके। सो इसमें क्या होता है कि जो SEO होती है वेबसाइट की, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से हैंडल हो पाती है, SEO एंड ऑल प्रॉपर्ली डन कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारा HTML, CSS, JavaScript एंड React.js अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब फ्रंट एंड का फ्यूचर देखो, आज भी मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी को फ्रंट एंड डेवलपर तो चाहिए। कहाँ पे यूज होगा, देखो स्टार्टअप्स में, रिमोट जॉब्स में तुम कर सकते हो, SaaS कंपनीज, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी, फिर फ्रीलांस भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें अच्छी फ्रंट एंड आती है, अच्छा तुम UI UX बना सकते हो, अच्छी पावरफुल वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, क्रिएटिव, ठीक है, तो तुम्हें काफ़ी फ्रीलांस में भी जॉब मिल सकता है, तुम काफ़ी कुछ क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है, उसमें प्रोजेक्ट शो करो और क्लाइंट को रीच आउट करो, तो वहाँ से भी तुम अर्न कर सकते हो। फिर फ्रंट एंड डेवलपर्स बिल्ड करते हैं डैशबोर्ड्स, वेब एप्लीकेशन, SaaS टूल्स, एडमिन पैनल्स, ठीक है, क्रिएटिव UI, ठीक है, बहुत सारे पावरफुल तुम वेबसाइट्स फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे सीखना है, रोड में वेरी सिंपल, फर्स्ट स्टेप यू लर्न HTML, then CSS, second step then JavaScript fundamentals you have to learn। after mastering these three things you have to focus on React.js and उसके बाद तुम्हें अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो स्टार्टिंग में तुम छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाओगे, लाइक टू डू ऐप, पोर्टफोलियो, डैशबोर्ड्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट, छोटा छोटा कुछ अपना बना सकते हो। फिर उसके बाद एक मेजर प्रोजेक्ट तुम्हें क्या करना है, बनाना है, एक दो अच्छे खासे प्रोजेक्ट बनाना है, अपने फ्रंट एंड को यूज कर सकते हैं। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ AI, यूज इट वाइसली, ओके। लेकिन जब तुम सीख रहे हो ना तो उस टाइम थोड़ा अवॉइड करना कोड जनरेशन, ट्राई टू राइट कोड बाय योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। सो फ्रंट एंड डेवलपर से यू कैन अर्न मनी वेरी इजीली इन इंडिया, लाइक यू कैन गेट जॉब from 5 LPA to 25 LPA, like basic companies में तो small amount you can earn, but companies like Amazon, Coursera, they are paying a good amount of money. If you are very experienced and good front-end developers, then you can get good amount of money, depending on your skills. And freelancing you can also do, like freelancing it depends on you, clients के लिए तुम वेबसाइट बनाओ, like portfolio वेबसाइट, उनके लिए लैंडिंग पेजेस, बिजनेस वेबसाइट्स, so based on that you can earn good amount of money। या फिर तुम अपना कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, कुछ टूल्स, डैशबोर्ड्स, प्रोडक्टिविटी एप्स एंड ऑल। सो
एंड मैं देखो ये बोलूँगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग नहीं है, इट्स डिज़ाइन प्लस लॉजिक प्लस क्रिएटिविटी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ गुड फ्रंट एंड डेवलपर, अगर तुम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक अमेजिंग करियर तुम्हारे लिए हो सकता है। ओके, डोंट गेट अफ्रेड कि AI इज गोइंग टू रिप्लेस यू, यूज इट AI इन योर ओके, बट यू हैव टू बी very good, you have to stand out from the other vibe coders। okay, और if you find this video helpful and अगर तुम्हें कोडिंग और डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो make sure to subscribe to my channel Aslam Coding, and let's meet in the next video। so thanks for watching, have a nice day, please।